Okay, see here. After research, we will start with the types of research. Okay, so importance हो गया है, स्कोप देखा हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च देखा हम लोगों ने. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ रिसर्च. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये क्यों पता होना चाहिए? What is the meaning of types of research? What kind of a types are there? Because when you will going to prepare your project in your semester 6, so at that time you should be clear, like as per your topic, what kind of a research you should do. आपको प्योर रिसर्च करना है, आपको अप्लाइड रिसर्च करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए. So therefore it is very important to understand these types of research. Okay, so totally the first one is the pure research, and then we are having applied. Third है empirical. Fourth is scientific and the social. And then the fifth one is historical research. And then casual research, descriptive research, exploratory research. टोटल यू आर हैविंग 8 टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो ये 8 टाइप के रिसर्च में से विच टाइप ऑफ अ रिसर्च यू विल गोइंग टू अप्लाई इन सेमेस्टर 6 when you're going to do the practically preparing the project. So वो आपको एक आइडिया आना चाहिए कि what are the types of research here. Okay, so first one here, pure research. Pure research मतलब क्या होता है? Often pure research is called theoretical, basic or fundamental research. ठीक है, so you should not get confused कि what is the meaning of theoretical, basic or fundamental. Whether it is theoretical research, basic research or the fundamental research, but still it will be called as your pure research only. तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, विच वन इज द प्योर रिसर्च. तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग बेसिक, थ्योरेटिकल, फंडामेंटल ऐसा कुछ इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन डालेंगे. सो यू शुड हैव द क्लियर आइडिया कि थ्योरेटिकल का मीनिंग भी प्योर है, बेसिक का भी मीनिंग प्योर रिसर्च है, फंडामेंटल का भी मीनिंग प्योर रिसर्च ही है. It is not directly connected with solving marketing problem. Primarily, it aims at improving academic knowledge about the subject matter. Pure research is for expanding the frontiers of knowledge and does not directly involve in dealing with pragmatic problems. Pure research does not deal with commercial problem, but it relates to a fundamental problem concerning the business and the allied subject. Pure research may address itself to issues like drug addiction among the youth or reason for youngsters fleeing to Mumbai to make career in Bollywood. It is not concerned with the problem with immediate commercial potential. Okay. So what do you understood here? Pure research, it means what? This kind of a research will not going to give you any solution. यहाँ पे solution नहीं रहेगा. But yes, it will going to expand your knowledge. How it will going to expand your knowledge? You people must be knowing कि like many people from the other cities or from the other what we can other states are coming to Mumbai just to make a career in the Bollywood. So ये जो youngster है, why they are so much motivated to come towards the Mumbai and have that kind of a Bollywood career? तो इसके पीछे आपको reason find out करना है. You may not be knowing, you people must be knowing only one thing कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं, शायद इसके लिए लोग आते रहेंगे जॉब के लिए, यहाँ पे पूछने के लिए. ये एक रीज़न आपको पता रहेगा. बट यू डोंट नो अबाउट द अदर रीज़न कि क्यों लोग आते हैं मुंबई में ये सब बॉलीवुड में करियर करने के लिए. देन देयर यू विल कम टू नो कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट भी है कि जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे वो उसका उसके अंदर करियर करने के लिए. देन अगेन you will going to get the many opportunities to be in touch with the director, to be in touch with the producer. And then वहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्हाट वी कैन से क्लासेस होते हैं कि जो एक्टिंग क्लासेस होते हैं वो ये लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं. देन अगेन फोटो शूट्स के लिए प्रॉपर ऐसे यहाँ पे व्हाट वी कैन से फोटो स्टूडियोज वगैरह है कि जो आपका मतलब जो आपका फोटोज आते हैं उसके एकदम अच्छे से एडिट करके वो बोलते हैं ना हम लोग, आई रियली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द नेम फॉर दैट, कि खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ कि जिसके अंदर आपका पूरा ऐसे अलग अलग स्टाइल्स के फोटो वगैरह रहेंगे जो आपको आप प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर को प्रेजेंट कर सकते दिखा सकते हो कि दिस इज़ व्हाट माय पोर्टफोलियो है. उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ रहेगा आपकी फिल्म में कोई काम रहेगा तो यू गिव मी एज पर दैट. सो दैट वे दिस काइंड ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज यू विल गोइंग टू गेट इन टू द मुंबई. बट वो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है और आपको वो फाइंड आउट करना है. देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ठीक है चलो ऐसे बहुत सारे रीज़न है दैट एक्चुअली मोटिवेटिंग द पीपल टू गेट इन टू द बॉलीवुड करियर, एंड फॉर दैट रीज़न दे नीड टू कम टू द मुंबई.
ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ सोल्यूशन दिया क्या आप लोगों ने? नो, आपने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, आपने जो सबका नॉलेज बढ़ाया कि हाँ ये क्यों है ऐसा। जैसे उन्होंने और एक कहा है कि लाइक वन मोर एग्जांपल दे हैव गिवन हियर दैट द ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ इज मोर, मतलब यहाँ पे यंगस्टर जो रहते हैं उनके अंदर ड्रग एडिक्शन ज़्यादा रहता है। ओके, ये क्यों होता है, इसका क्या सोल्यूशन है? इंस्टेड ऑफ दैट यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट कि ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ मतलब ये कैसे होता है, मतलब कैसे वहाँ पे उनको ड्रग एडिक्शन हो जाता है, कितने लोग ड्रग एडिक्टेड है करके, दैट वे यू कैन से। बट यू कैन नॉट गिव इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर दोज थिंग। मतलब आपका रिसर्च ऐसा रहेगा, प्योर रिसर्च मतलब कि यहाँ पे जैसे आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आप कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, कोई और मुझे आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये प्योर रिसर्च में आएगा? एनीथिंग रिलेटेड टू यू? Yes, okay, yes, we can give the example like Kritika's example, like she want to have the lyrics, she want to know the lyrics of each and every song. ठीक है, तो यहाँ पे कृतिका कुछ solution दे रही है क्या? नहीं, she is actually expanding her knowledge. Expanding her knowledge it means what? She know like one song is there but I really don't know कि उसके लिरिक्स कैसे है, कैसे उसका बराबर से लिरिक्स है वो गाने के। तो वो जस्ट उसको फाइंड आउट कर रही है, वो कोई सोल्यूशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, बट वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि वो प्योर रिसर्च कर रहे हैं, वो बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, वो कोई ऐसा कमर्शियल प्रॉब्लम रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहे और उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। हाँ, इफ शी इज गिविंग सोल्यूशन फॉर सर्टेन थिंग then we cannot say it is a pure research. Okay, so this is what the pure research is. Pure research is conducted out of intellectual curiosity for the sake of knowledge. Its finding constitute the foundation of applied research. Pure research may also involve improvement in the existing knowledge, contributing to reinterpretation of the existing theory. For example, Malthusian theory of population later developed optimum theory of population. Similarly, Taylor's one best way of doing work. अच्छा, यहाँ पे they have given the main example. ओके, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि प्योर रिसर्च मतलब क्या होता है कि ये आपका खुद का क्यूरियोसिटी है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्या होता है करके, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि नहीं मुझे ये पता चला और मुझे पता लगा तो मेरा कंक्लूजन ऐसा है और वो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर ये प्रॉब्लम के ऊपर ये सॉल्यूशन हो सकता है करके। सो दैट वे वी विल नॉट गोइंग टू एक्ट इन दिस रिसर्च। प्योर रिसर्च मतलब जस्ट तुम लोग फाइंड आउट करें बिकॉज तुम्हें वो क्यूरियोसिटी वो जानना है कि क्या है एग्जैक्टली करके। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाट इज प्योर रिसर्च? बताओ, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो अभी आप लोग मुझे बताओ, अभी तक Yes, आप ma'am. लोगों ने जितना भी रिसर्च किया, जितना भी गूगल पे सर्च किया है, इज इट लाइक अ काइंड ऑफ अ प्योर रिसर्च ओनली? बिकॉज आपको कुछ पता नहीं है और आपको फाइंड Yes. आउट करना है, दैट्स इट, यू आर नॉट गिविंग एनी Yes, सोल्यूशन, ma'am. राइट? So therefore we are saying like Yes, whenever you ma'am. are finding out something on the Google, so it means what? You are expanding your knowledge, and that kind of a research is called as your pure research, basic Pure research, or we can research. say fundamental research or theoretical research. Okay, Theoretical. so what is the objective of research? Research, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, just hold. हाँ, ओके, सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च? अभी ये जो प्योर रिसर्च है उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव उसका ये रहता है, डायरेक्शन ऑफ स्टडी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्योर रिसर्च इज टू डिटरमाइन द एरिया, पर्सपेक्टिव एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिसर्च स्टडी. Pure research makes distinction between relevant and the irrelevant facts. It guides research to move in the right direction to achieve the desired objective. देखो, डायरेक्शन ऑफ स्टडी ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या है कि सपोज इफ यू आर डिसाइडिंग कि नहीं मुझे व्हाट, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए और एक फैमिली एग्जांपल क्या दे सकती हूँ? ओके, आई वांट टू सी लाइक विच आर द अपकमिंग मूवी ऑफ संजय लीला भंसाली। ओके, संजय लीला भंसाली के कौन से अपकमिंग मूवी है? कैन एनीवन टेल मी यार विच वन इज द अपकमिंग मूवी ऑफ संजय लीला भंसाली? यस, यू नो हु इज संजय लीला भंसाली? एटलीस्ट No, ma'am. नहीं पता है? Yes, ma'am. हाँ, तो संजय लीला भंसाली का भी कौन पता सा है मैम. नया मूवी आ रहा है? ये पता नहीं मैम. वो पता नहीं, ओके। वो गंगूबाई करके आपने मूवी का नाम सुना है? आलिया भट्ट इज द एक्ट्रेस देयर, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ गंगूबाई, सुना है आप लोगों ने? गंगूबाई काठेवाड़ी करके है एक मूवी। यस, नहीं सुना आप लोगों ने? No, ma'am. ट्रेलर नहीं देखा अभी तक?
किसी ने भी नहीं देखा? देखा है देखा है मैम मैम। मैंने। हाँ, सो दिस अच्छा ठीक है, मुझे एक बता, संजय लीला भंसाली के पहले मूवीज थे जो आपको पता है? बहुत। मस्तानी। कौन सा? क्या है? मेरा मस्तानी। हाँ, बाजीराव मस्तानी। और बताओ। रामलीला। रामलीला, हाँ करेक्ट, रामलीला इज देयर। और हम दिल दे चुके। पद्मावत। एंड देन अगेन देवदास, है ना? देवदास भी उसका ही है ना? ओके। यस मैम। हाँ, so these are the many movies who are actually super hit. तो अभी उसका अपकमिंग मूवी है गंगूबाई। इवन वो रानी मुखर्जी का कौन सा, वो ब्लैक है ना, वो जिसमें वो अंधी है, देखा रहेगा आप लोगों ने शायद से। ठीक है, वो भी उसका ही मूवी है आई थिंक। हाँ, संजय लीला भंसाली का ही मूवी है। ओके, सो मुझे अभी सर्च करना है कि लाइक विच आर द अपकमिंग मूवी ऑफ संजय लीला भंसाली। देन आई कम टू नो कि गंगूबाई इज द नेक्स्ट अपकमिंग मूवी। तो ठीक है, ये मेरा क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ स्टडी, मतलब मुझे पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। सो आई नो इट वेरी क्लियरली, आई नीड टू फाइंड आउट कि उसका क्या, ये जो डायरेक्टर है उसका आगे आगे वाला अपकमिंग मूवी कौन सा है करके। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ स्टडी क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो यू शुड हैव वेरी क्लियरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके, तो ये अगर क्लियर रहता है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्योर रिसर्च। सेकेंड objective is summarization. The material collected for pure research can be divided into two categories. One is that is general, or we can say the specific. Pure research summarizes data and the information to make the process of research easy and smooth. Summarization, it means what here? जी ठीक है, आई नो अबाउट द संजय लीला भंसाली, उसका क्या क्या प्रीवियस मूवीज था करके। ओके, अभी मैं समराइज कर रही हूँ कि आगे वाला मूवी क्या है करके। So whatever material I am collecting, it is totally specific one. Why I am saying specific one? Because I am only concerned about the Sanjay Leela Bhansali. I am not concerned about the other directors' movie. So there I am particular about this thing कि like I want to see the movies of these directors only. तो इसके लिए मैं वहाँ पे specific research कर रही हूँ, मतलब मैं वहाँ पे specifically एक ही चीज़ के ऊपर target कर रही हूँ. There are many upcoming movies, but no, these are not so important. I want to focus on Sanjay Leela Bhansali's upcoming movie. So this is what my specific summarization will going to have. Okay, the next one here, gaps in knowledge. Pure research not only summarizes the available knowledge, but it also directs which of the facts have already been collected and which are yet to be collected. It helps to complete the research study by filling the gap in the knowledge. ये gaps in the knowledge मतलब ये किसके knowledge में gap है? This is an our knowledge gap कि हम लोग को पता नहीं है. Okay, so pure research will going to help you to fill that gap. आपको जो पता नहीं है, आपके पास जो नॉलेज नहीं है ना, वो आपको पता लगाने के लिए वो हेल्प करेगा। जैसे आपको पता नहीं कि उसका क्या नेक्स्ट मूवी है और आपने वो पता लगा दिया थ्रू द प्योर रिसर्च, इट मीन्स व्हाट हियर, इट हैज हेल्प यू टू फिल अप योर gap of knowledge. Okay, now next one here, forecast of facts. Pure research forecasts about the facts which are essential for the research work. It indicates the factors are going to influence a particular situation. It also gives direction to the researcher to collect and study those factors. See, a pure research forecasts about the facts which are essential for the research work. मतलब अंदाजा लगाना। एक ये भी होता है कि थ्रू द प्योर रिसर्च यू विल एबल टू डू सर्टेन एस्टिमेशन, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे अभी आप बोलोगे कि लेकिन मैम आपने जो टॉपिक अभी बताया कि संजय लीला भंसाली का अपकमिंग मूवी क्या है, तो उसमें हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ओके उसका अपकमिंग मूवी ये गंगूबाई काठेवाड़ी है, उसके बाद में उसने कौन सा फिल्म साइन किया है, कौन सा फिल्म वो कर रहा है। हाँ, तो मे बी नेक्स्ट मूवी उसका वो रहेगा। सो दैट वे वी कैन डू द एस्टिमेशन, मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके आगे वाली मूवी और क्या क्या रहेगी, इसके बाद दूसरा कौन सा मूवी आ जाएगा। So that kind of a forecasting we can do with the help of pure research. Then the classification of facts. Pure research provides classification and tabulation of the knowledge, facts and the material. It also makes available base for defining cause and effect relationship among the factor. Personal information or demographic details of the respondents such as age, then marital status, income, education level, etc. are classified. Okay, classification of facts मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है that pure research will going to help you to understand the cause and effect relationship. Cause and effect relationship, it means what here? चलो मैं तुम लोग का भी संजय लीला भंसाली का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, सो देयर वी कैन सी कि पहले उसने ये मूवी स्टार्ट किया तो पहला ये आ जाएगा, सेकेंड उसने ये मूवी साइन किया तो सेकेंड मूवी ये आ जाएगा। सो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया कि पहला उसका
इट इज़ ऑल ऑब्वियस कि पहला उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ करके उसका फिल्मिंग स्टार्ट हुआ करके वो पहले आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी एक बता देती हूँ कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इन TY BBI क्लास हाउ मेनी आर द गर्ल्स एंड हाउ मेनी आर द बॉयज। ओके, ये आपका रिसर्च का टॉपिक रहेगा। सपोज कि TY BBI क्लास के बारे में आपको स्टडी करना है। सो TY BBI क्लास में आप लोग पहले फाइंड आउट करें कि कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है करके। ओके, बॉयज़ इतने हैं गर्ल्स इतने हैं। TY BBI में अटेंडेंस आर ऑलवेज गुड। वहाँ पे एक एनालिसिस आ गया कि TY BBI में गर्ल्स आर मैक्सिमम एज कंपेयर विद द बॉयज़। ओके, दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन। मुझे ये पता चला कि गर्ल्स वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर विद द बॉयज़। एंड फिर मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पे अटेंडेंस भी अच्छा है। सो व्हाट विल बी द माय कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे गर्ल्स लोग ज़्यादा है, सो दे आर क्वाइट सिंसियर, दे आर वेरी गुड, they are good in studies compared with the boys, they are very much sincere compared with the boys, and they are so much attentive compared with the boys। तो इसके लिए वहाँ पे उनका रिजल्ट भी अच्छा है TY BBI का। अच्छा लगा ना बॉयज आपको लड़कियों का इतना तारीफ सुनने के बाद? यस और नो? यस। अभी कोई बॉयज नहीं बोलेगा गर्ल्स, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा आपका इतना तारीफ सुनने के बाद? हाउ डू यू फीलिंग? अच्छा यस। लगा मैम। अच्छा, ओनली आशा को अच्छा लगा, बाकी लोग को अच्छा नहीं लगा? ऐसा है या नहीं? गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन द बॉयज। व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू गर्ल्स? यस, टेल मी। यस मैम। यस मैम। हम हाँ ना, गर्ल्स हमेशा अच्छे रहते हैं ना बॉयज से भी। हम्म। हाँ मैम। और जिस क्लास में गर्ल्स ज़्यादा रहेंगे वो क्लास बहुत अच्छे से स्कोरिंग करके पास भी हो जाता है, हमेशा उसका फीडबैक भी अच्छा रहता है उस क्लास का। एम आई राइट और नॉट? बॉयज वांट टू से समथिंग? अभी कोई नहीं अच्छा, इफ बॉयज आर नॉट सेइंग समथिंग इट मीन्स बॉयज आर आल्सो एग्री कि यस गर्ल्स लोग हम लोगों से भी बेटर रहते हैं। थैंक यू सो मच बॉयज, ओके, फॉर अप्रिशिएटिंग द गर्ल्स। You should always appreciate and you should always feel that girls are always better than you. Okay, चलो, now we'll move ahead, otherwise पता चला और boys कुछ ना कुछ comment कर देंगे इधर। Okay, next one here, classification of facts that we have seen. Then the satisfies the thirst for knowledge. So pure research explores basic and fundamental laws which is of great help in the development of knowledge and provide new direction to the future investigation. With rapid changes taking place in the environment, theories and the principles become outdated. Hence, it is necessary to revise and update them from time to time. Pure research in this way satisfy the thirst for knowledge. So, satisfy thirst for knowledge, it means what here? As I already told you, like you people are not having some knowledge and you want to have that kind of a knowledge. And for the research, if you are finding out something, so it is called as your pure research. इसको pure research कहा जाता है. Okay, so it will going to satisfy you, like whatever information you are getting, so through that information you will going to feel satisfied। और मतलब आगे जाके भी अगर उससे रिलेटेड कुछ आपको कुछ क्वेश्चन आ जाता है, then definitely you will be able to give certain kind of a answer for this particular problem here। okay, so this is what about your types of research में हम लोगों ने देखा pure research के बारे में। okay, shall we start with the applied research also? अप्लाइड रिसर्च कितना बड़ा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक यस मैम। सिंपल वे में मैं आप लोग को बताती हूँ व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च या। हाँ, ये क्या है? वी आर वेटिंग फॉर आवर टाइम। व्हाट इज दैट? हम विकेट आने पे बताने वाले में से है। ओके 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 मनोज। मनोज, यू आर वेटिंग फॉर योर टाइम बट आई रियली डोंट थिंक सो लाइक दिस गर्ल्स विल गोइंग टू गिव यू एनी टाइम, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं देने वाले ऐसा कुछ बोलने के लिए। गर्ल्स आर ऑलवेज बेस्ट। ओके, सी हियर, अप्लाइड रिसर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे। अप्लाइड रिसर्च विच इज ऑल्सो कॉल्ड एट डिसीजनल रिसर्च, ये थोड़ा अलग रिसर्च है। प्योर रिसर्च में हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट फाइंड आउट कर रहे थे कि ये क्यों होता है करके। ये मतलब क्यों होता है इन द सेंस कि मुझे पता नहीं इसके बारे में और इसके लिए मुझे वो फाइंड आउट करना है, सो दैट इज कॉल्ड योर प्योर रिसर्च। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्लाइड रिसर्च। अभी अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, एक रिसर्चर कैसे वहाँ पे किसी चीज़ों को फाइंड आउट करता है। सी, अप्लाइड रिसर्च के लिए अल्टरनेटिव नाम है दैट इज डिसीजनल रिसर्च, डायरेक्टली डील्स विद कमर्शियल प्रॉब्लम। ओके, सो ये बेसिकली कमर्शियल प्रॉब्लम से रिलेटेड रहता है। इट टैकल्स द बिजनेस प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट्स टू फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च क्या करते हैं, मतलब
एक प्रॉब्लम भी लेता है और उसका सॉल्यूशन भी देता है। प्योर रिसर्च में हम लोगों ने क्या देखा कि नहीं, ओनली फॉर नॉलेज गेन इट इज़ यूजफुल, लेकिन इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉल्यूशन। बट अप्लाई रिसर्च एक कमर्शियल प्रॉब्लम के साथ हम लोग लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में रिलेट to locating reason for a fall in sales or to introduce a new brand of product. It suggests alternative solution and possible outcomes of each alternative. Okay, as against basic research, it is promoted by commercial consideration. Applied research can be of two types. One is the problem solving, another one is the problem oriented. As the name indicates, problem solving research relates to a specific problem. This research can be conducted either by the marketing research department of the firm or by an outside research agency. By contrast, problem oriented research deals with the problem that may be of interest to many firms. This type of a research put into practice the knowledge obtained through the basic research. देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि बेसिक रिसर्च में मैं जस्ट क्या करती हूँ कि मैं नॉलेज गेनिंग करती हूँ कि मुझे ये पता नहीं और मैंने फाइंड आउट किया। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम के साथ आते हो एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी द कमर्शियल वन। आप एक प्रॉब्लम के साथ आते हो और वो प्रॉब्लम बस आपका ही नहीं है, दैट प्रॉब्लम इज फेस बाय मेनी पीपल एंड देयरफॉर यू आर कमिंग विद द प्रॉब्लम। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यूथ जनरेशन में ड्रग एडिक्शन क्यों ज़्यादा है। ओके, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द प्रॉब्लम, और मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसे क्यों होता है। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, ये लोग क्यों मोटिवेट होते हैं, क्या साइकोलॉजी का रीज़न हो सकते हैं, इनको प्रोवाइड करने वाला कौन है, उसके फाइनल क्या रिजल्ट आता है और उसको कैसे सोल्यूशन करना है, इसके लिए क्या सोल्यूशन, क्या रेमेडीज वी कैन अडॉप्ट हियर। if I am trying to find out my problem through this way, then I will going to say this is what your applied research। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम को लेके आना, वो प्रॉब्लम के बारे में पूरा स्टडी करना, उसके बाद में उसके ऊपर एक कंक्लूजन लेके आना, और वो कंक्लूजन इस तरीके से रहे कि जिससे आप वहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रहे हो कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करना चाहिए करके। सो अप्लाइड रिसर्च इज टोटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है, या फिर वी कैन से प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम है और इसके लिए मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। सो व्हेन आई एम डूइंग द रिसर्च ऑन दैट बेसिस, इट इज कॉल्ड एज योर applied research. So see here, this is the age of applied knowledge and not the pure knowledge. Business research, business research being a practical subject, it gains importance because it can be applied to varied organizational aspects. Business research requires professionally qualified person who can observe, analyze and give decision based on going गोइंग ऑन इन द मार्केट। अच्छा, मतलब उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि अगर तुम लोग कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हो वहाँ पे कि मुझे एक प्रॉब्लम के बारे में बात करना है, तो वो जो प्रॉब्लम रहेगा ना, वो करंट प्रॉब्लम होना चाहिए कि हाँ अभी लोग उसको फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये होता है आपका अप्लाइड रिसर्च जनरली। अभी यूटिलिटी मतलब क्या है यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च डेवलप सच थियरी विच आर यूजफुल फॉर द प्योर रिसर्च। इट क्लैरिफाई एज to how and which of the facts are useful to the society and in what way. Then again, it promotes the process of socialization and empower social institution. It studies social problem and issues. It makes available problem solution to the policymaker. It collects useful information and the facts based on experiment and the empirical knowledge about the human behavior and the social relation। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान में रखो आप लोग। पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च में मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रही हूँ, मेरे पास जो नॉलेज नहीं है वो मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में मैं क्या करती हूँ कि बेसिक रिसर्च के थ्रू मुझे पता चला कि अच्छा लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है करके, तो मुझे वो प्रॉब्लम पता चला। अभी मैं अप्लाइड रिसर्च में क्या करूँगी, उसी प्रॉब्लम के लिए मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं एक कंक्लूजन पे आऊँगी, और वो कंक्लूजन इस तरीके से रहेगा कि जो वो प्रॉब्लम के बारे में मुझे डिटेल नॉलेज देगा और वो प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन भी देगा। ओके, सो अप्लाइड रिसर्च मतलब क्या कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आप लोग लेके आ रहे हो
वो करंट होना चाहिए. सो ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये जनरली कमर्शियल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम. लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैम ये तो कमर्शियल के लिए रहेगा तो कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए हम लोग ले नहीं सकते क्या. नो, यू कैन टेक इट फॉर द साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो. ठीक है, उसके लिए भी आप ये रिसर्च कर सकते हो. एंड देन अगेन अब ये जो रिसर्च रहता है उसके बेस के ऊपर अलग अलग थियरीज क्रिएट की जाती है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट थियरी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कैसे आता है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है करके. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? Okay, now one by one, tell me here. Who is that? Okay, Bilkis. Bilkis, can you just tell me here what is the alternative name of basic research? Basic research का alternative नाम बताओ मुझे बिल्किस. Basic research को और क्या कहा जाता है? Can anyone tell me here? Divya? Pure research. Yes, it could be pure research, fundamental research, or we can say theoretical research here. Okay? Research. ध्यान नहीं है तेरा. Yes. Okay, now tell me from the boys side. Boys, can you just tell me here what is the alternative name for the applied research? Tell me here. What is the name, alternative name for the applied research? Yes, boys. इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन है उसको डिसीजनल रिसर्च कहा जाता है. व्हाट इज द अल्टरनेटिव? मैंने यहाँ पे स्क्रीन जानबूझ के सामने रखा फिर भी तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो. इसके लिए मैं बोलती हूँ गर्ल्स आर ऑलवेज बेटर. ओके, तो अप्लाइड रिसर्च के लिए अल्टरनेटिव हाँ नाम हाँ. डिसीजनल रिसर्च करके. ओके, अभी तुम लोग मुझे इसी से बताओ प्योर रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च में से कौन सा रिसर्च जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं. Pure research. Yes, very good. It is only the very good Prajwala. Very nice. I'm really impressed by your answer कि तू ध्यान दे रहा है करके. Good one. से प्योर रिसर्च मतलब क्या कि जस्ट टू गेन द नॉलेज हम लोग वो रिसर्च करते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट मुझे बताओ कि जब मैं एक प्रॉब्लम लेके आती हूँ और वो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता रही हूँ तो इसको कौन सा रिसर्च कहा जाएगा? Applied research. Yes, very good Maheshwari. So that could be the applied researcher. इन दोनों में से प्योर रिसर्च में से एंड अप्लाइड रिसर्च में से कौन सा रिसर्च कमर्शियल प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाएगा? टेल मी स्टूडेंट, कमर्शियल प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा रिसर्च यूज किया जाएगा, प्योर और अप्लाइड? चलो बताओ आपका. Applied research. Yes, Applied. वेरी गुड दिव्या. इट इज अप्लाइड रिसर्च. ओके, अप्लाइड रिसर्च क्या करता है? कमर्शियल प्रॉब्लम के बारे में बात करता है बिकॉज वेन एवर वी आर लुकिंग इनटू कमर्शियल प्रॉब्लम देन वी हैव टू गिव द सॉल्यूशन आल्सो. सो अप्लाइड रिसर्च इज dealing with the commercial problem here. So is it all clear to you student, these two type of a research, pure and the applied? Yes, ma'am. Okay, okay. So that's it for today. Yes, Manoj, can you do one thing?